Hello students, today we will discuss the unit that's periodic table. So first of all हमें पता होना चाहिए classification of elements किसको बोला जाता है classification of elements. So classification of elements is nothing, it is the arrangement of elements based on atomic number. That defines the properties of elements. So classification of elements takes place on the basis of Z. Z is atomic number, and the classification of elements takes place in groups as well as periods. So the whole thing, that is groups as well as periods on the basis of Z, that's known as periodic table. So first of all, we'll write down here classification of elements. So classification of elements, write down arrangement of elements, arrangement of elements, arrangement of elements, arrangement of elements, arrangement of elements based upon atomic number, based upon atomic number. So arrangement of elements based upon atomic number. To define various properties, to define various properties, to define various properties, to define various properties, or the properties which are to be discussed for the various elements, that becomes very easy with respect to classification of elements. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम इसीलिए करते हैं ताकि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कोई भी पढ़ेंगे, जो भी कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो हमें आसान लगेगा. इसीलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ज़रूरी है. लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे किया जाता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस बाय periodicity. So this is the main thing that is going to be discussed. Periodicity defines classification of elements. So classification of elements is based on atomic number, which is based on periodicity. So write down what is periodicity. What is periodicity? So here I will write down what is periodicity. What is periodicity? Write down. The periodicity means the repetition means the repetition of properties of elements, repetition, that means the properties of elements, means the repetition of properties of elements after certain gaps of atomic numbers, This is the periodicity. So periodicity means the repetition of properties of elements after certain gaps of atomic numbers. Atomic numbers में जो gaps होंगे, one by one gap, like यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, लिथियम है हमारे पास, इसके बाद सोडियम है, इसके बाद पोटेशियम है. तो लिथियम के बाद, सोडियम के बाद, पोटेशियम के बाद अगर कोई लिथियम जो है अगर प्रॉपर्टी दिखाएगा ऑक्सीजन के साथ,
सोडियम अगर दिखाएगा ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम अगर दिखाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हमें क्या है, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी एक गैप के बाद, दिस इज वन गैप, सेकंड गैप के बाद आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगी। उसके बाद सोडियम से जब आप नीचे जाओगे पोटेशियम की तरफ, वही प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। इन कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि अगर हमें रिपीट हो जाएगी प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स, एक एटॉमिक नंबर के बाद फिर से आपको नीचे जाओगे सेटअप, या कोई भी जो आप जैसे आप पढ़ोगे एक सेटअप जाओगे आगे, तो वही प्रॉपर्टी जब हमको मिलेगी तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी में ही हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसके बाद आप लिखिए व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, why do we classify elements, or you can say what is the need of classification, what is the need of classification, what is the need of classification. Before we reach to the different points regarding the periodic table, or we can say history of periodic table, or we can say properties of periodic table, first of all यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्यों हमने की, why do we classify elements, what is the need of classification, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्यों किसी लिए हम करते हैं। So in order to know the answer of this question, following points are to be defined. So first of all I will show here what are the important parts that define us, that is very important for classification of elements. So write down few points. The few points are O, P, U, F, M, I. This is a short trick. जो हम यहाँ पे पॉइंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए हैं, वो इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक में मैंने बनाया O, P, U, F, M, I. O, P, U, F, M, I. What represents O? What represents P? What represents U? What represents F? What represents M? What represents I? So यहाँ पे याद रखिए आप कि ये पॉइंट्स जो है, यही पॉइंट्स जो है, इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की है, ताकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये पॉइंट ज़रूरी थे। अगर ये पॉइंट्स जो है इन पॉइंट्स का आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसीलिए हमने किया है क्योंकि ये पॉइंट्स डिफिशिएंसी थी, O, P, U, F, M, I. So what represents? Write down. O represents organization and simplification. Organization and simplification. यानी जो एलिमेंट्स क्लासिफाई किए गए हैं, the elements are classified because of the elements is to be organized and simplified. यानी हमें आसान लगेगा और ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एलिमेंट्स नहीं होते, अरेंजमेंट नहीं होता, तो हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाते। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, P represents predicting properties. P represents predicting properties. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसीलिए है ताकि जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर्टीज क्या होंगी। जब भी साइंटिस्ट्स इन्वेंट करेंगे या डिस्कवर करेंगे जो भी एलिमेंट्स को,
उन एलिमेंट्स को कहाँ रखेंगे। तो प्रॉपर्टीज जब हम उन एलिमेंट्स की देखेंगे, ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, तो पीरियोडिक टेबल जब साइंटिस्ट के पास है तो वो देखेंगे कि प्रॉपर्टीज किस एलिमेंट के किस ग्रुप से सिमिलर है, तो उसी ग्रुप में रखेंगे। तो इसीलिए प्रेडिक्टिंग प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो प्रेडिक्टिंग प्रॉपर्टीज इज द क्राइटेरिया, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंपलिफिकेशन इज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स in a easy manner. This is the second point. Third point, understanding relationship and trends. Third point U है हमारे पास, understanding relationship and trends. Relationship and trends. तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, जो भी रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट, जो भी ट्रेंड्स होंगे उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। दिस इज द थर्ड। फोर्थ लिखे एफ। व्हाट एफ रिप्रेजेंट्स? फैसिलिटेटिंग रिसर्च। What F represents is facilitating research and discovery. Facilitating research and discovery. Facilitating research and discovery. This is the fourth point. The fourth point is because of कि classification of elements इसीलिए किया जाता है ताकि इससे रिसर्च हमें फैसिलिटेट हो जाएगी। यानी कोई एलिमेंट, अगर कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी स्टूडेंट होगा जो चाहेगा कि he or she wants to research, first of all she or wants to observe the elements which are in the periodic table. जब भी पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स को देखेगा उससे फैसिलिटेट हो जाएगा रिसर्च एंड डिस्कवरी, उससे उसको आसान लगेगा, इजी लगेगा कि आगे वाले एलिमेंट्स जो है वो कैसे डिस्कवर किए जाते हैं। दिस इज द फोर्थ वन। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंपलिफिकेशन, सेकंड प्रेडिक्टिंग प्रॉपर्टीज, थर्ड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स, फोर्थ इज फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड डिस्कवरी। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी एम। एम रिप्रेजेंट्स मेमोरी एड। मेमोरी एड। मेमोरी एड मीन्स अगर हमें एलिमेंट्स को याद करें, अगर हमें एलिमेंट्स को मेमोराइज करने, अगर हमें एलिमेंट्स को रिमेंबर रखने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट इट बिकम्स फॉर एवरीवन easy to memorize the elements like in groups. For example, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा एक ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेशियम। तो अगर मैं एलिमेंट्स मुझे तभी याद है जब पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ये पहला ग्रुप है, दिस इज ग्रुप वन। तो ग्रुप वन के लिए जब मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उससे हमें आसान लगता है याद करने के लिए। अगर ऐसे ग्रुप नहीं बनाया था या नहीं बना था तो तब हमें मुश्किलात होती कि जब ऐसे ही हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और 1118 जो एलिमेंट है वो OG है, ऑर्गेनिसान है, तो एक से एटॉमिक नंबर 1 से 118 तक एटॉमिक नंबर तक बड़ा मुश्किल होता है याद करना या मेमोराइज करना। इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल इसीलिए है, तो ग्रुप्स जो है वो आसान होता है, उससे हमें मेमोराइज करने हैं, मेमोरी एड के लिए अच्छा है। दिस इज द फिफ्थ। सिक्स्थ पॉइंट, आई रिप्रेजेंट्स आइडेंटिफाइंग similarities and differences. Identifying similarities and differences among elements. तो आइडेंटिफाई, अगर कोई सिमिलैरिटी होगी, अगर कोई डिफरेंस होगा, पीरियोडिक टेबल है तो वो बड़ा आसान है। सो दिस इज ओवरऑल 6 points. Just these are the factors, criteria to classify the elements. Okay, thank you today.